hello, myself Tanish Bajaj. I am currently studying in Vardhaman Mahavir Medical College in Safdarjung Hospital, New Delhi. Hello everyone, this is Tushar Goyal, currently a first year MBBS student at VMMC in Safdarjung Hospital, Delhi. Hello, hi everyone. My name is Arshia and today I am on my friend's channel to discuss my journey to NEET. Well, hello. Hello guys, myself Abhishek. I am first professional MBBS student at VMMC Delhi. Hello everyone, my name is Umang Sharma and I am a first professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College in Safdarjung Hospital, New Delhi. Hello friends, my name is Garima Singh and I am a first year MBBS student at VMMC in Safdarjung Hospital. Hello everyone, I am Harjinder Singh Mahal and I am a first professional student here at VMMC, New Delhi. Hey guys, this is Ayush Jha and I am a first year medical student in VMMC. अब इतनी बड़ी जर्नी को इतने कम टाइम में बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट यस आई विल ट्राई माय बेस्ट कुछ मेन पॉइंट्स बताने की. So today I am going to share my experience during my NEET preparation and also give you some tips for the same and also the difficulties which I faced. My score in NEET 2020 was 662 and my all India rank was 1952. In NEET 2020, I got All India rank 101 and I scored 700 out of 720. And I'm here to help you guys go through your last month before NEET and help you plan some revision strategies. I am here to discuss about strategies, plans, and my stories and how to keep yourself motivated during the last month of this NEET preparation. I will be sharing my 2-year journey of NEET preparation today. So चलिए शुरू करते हैं. Well, hello. So, though disclaimer because this video intend to motivate you up, but ironically speaking, at this point of time you should not be dependent on a YouTube video to motivate yourself. Stop expecting an external person to knock on your door saying, hey, buckle up, start studying, it's time. Because at this point, it should come naturally to you. I think it should be you who would be reminding yourself every day that why you chose this path and why you should work hard for it. Stop resonating with that small voice in your head that's constantly telling you to quit and that's saying कि यार नहीं अब नहीं हो पा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, the syllabus is out of hand. And yeah, I understand that at times you can have moment of weakness where things are not making sense and it's just nothing but a mess which is overloading on you. Just trust me, the only person that will always come at your rescue at this point would be you yourself. Talk to yourself. Talk out yourself loud. Talk to yourself loud. Like I used to talk to myself so much during NEET and even now, so much so that my mom thought I was possessed. Now I understand that it's not, possible to stay motivated all the time, and it's fine if you're seeking help from outside, but I'm just saying that you should not be dependent on this. Like I never watched any video which said NEET motivation or 600 plus marks in 1 month. I don't know how efficient they are because I never tried, so I won't comment on that. But I never wasted my time on that. And not wasted would be the wrong word. I mean, I would just say that I never saw that video. And a lot of people would just say that, you know what, give your best, nothing matters. But I think that is... Listen, because you are given exam that is given by a huge chunk of people. And you don't have to make sure that you are giving your best. You have to make sure that the best you are giving is out competing others. You understand? Now, I'm not saying कि jealous हो जाओ या फिर एक ugly competition शुरू कर लो आपस में. I'm just telling about healthy competition. You have to see that where is your best. What if कि जो तुम best समझ रहे हो वो किसी और का average है. You have to, extend your range. You have to extend what you think is your best. मेरा सिलेक्शन नीट में 5th अटेम्प्ट में हुआ है और जब मैंने नीट की तैयारी शुरू की थी तब नीट था भी नहीं उस वक्त ये AIPMT एग्ज़ाम जाना आता था और हर बार सिलेक्शन ना होना इट्स डीमोटिवेटिंग. ऑब्वियसली वो डीमोटिवेटिंग तो था, बट जो एक चीज़ है जो मुझे बार बार इस पे जो हर वक्त हर
फेलियर के बाद जो मोटिवेट कर रही थी वो ये कि ब्रो तुझे ना और कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, और तुझे ये करना ही है। एक वक्त के बाद मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसा कहा कि तुम ले लो, प्राइवेट ले लो, पर मुझे था कि नहीं यार, एक एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं हो सकता कि हो ना और एंड में इतने अटेम्प्ट के बाद भी मुझे प्राइवेट लेना पड़े। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन का कारण था कि ब्रो करना तो है और खुद करना है। फिर फाइनली नीट 2020 में मेरा स्कोर 661 मार्क्स था विद ऑल इंडिया रैंक 2025। मुझे पता है अभी जब नीट में 1 महीना रह गया है तो अभी काफ़ी सारी अनसर्टिनिटी, काफ़ी सारी एंजाइटी होगी आप लोगों के मन में, बट एट दिस मोमेंट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं तो वो आपके दिमाग में हैं, ठीक है। और मतलब मैंने ना कई जगह से कोचिंग किया, बट फाइनल जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने सेल्फ स्टडी किया लाइब्रेरी में बैठ के। तो सिलेक्शन ये लास्ट के 2 महीने ही कराते हैं। आपने अगर चीज़ें पढ़ी हैं तो आपके दिमाग में हैं, बस जितना हो सके मैक्सिमम रिवाइज करनी है चीज़ों को इस लास्ट के 2 महीने में, ठीक है। मेरा 3 अटेम्प्ट के बाद जाकर नीट क्लियर हुआ। अब क्योंकि पेपर से पहले 1 महीना रह गया है तो मैं अपने हर एक जर्नी को, हर एक नीट को आखिरी महीने के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। जब मेरा फर्स्ट नीट हुआ तो लास्ट मंथ में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री था, मतलब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे मार्क्स आ नहीं रहे थे कुछ अच्छे, बट हाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैंने कभी इतनी सीरियसली पढ़ाई करी नहीं 11th में। और 12th में जब मैंने सीरियसली पढ़ा तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि 11th तो मेरा वीक था। तो जब फर्स्ट नीट से पहले मेरा लास्ट मंथ था तो मुझे इतना ना स्ट्रेस था, ना मुझे वो दिक्कत थी कि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, क्योंकि अंदर से मुझे पता था कि हाँ मैंने उसके लिए हार्ड वर्क भी नहीं किया है। तो फर्स्ट नीट मेरा अच्छा नहीं हुआ। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था नीट का, तो मैंने उस साल पढ़ाई तो अच्छे से करी थी, बट मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी। तो ऑब्वियसली कुछ भी पढ़ा हुआ विदाउट NCERT तो बेकार ही है नीट के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एंड वाले मंथ में स्ट्रेस में था कि क्या करना है। बहुत कुछ था रिवाइज़ करने को, बहुत कुछ था रिकलेक्ट करने को। तो जनरली एंड में पेपर्स होते हैं फुल सिलेबस वाले, तो मैं देता रहता था और मेरे मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट करते थे। कभी बहुत अच्छे आ गए, कभी बहुत बेकार आ गए। वो चीज़ एक्चुअली इसलिए थी क्योंकि मैंने कभी भी अपने बेसिक्स पे फोकस नहीं किया। तो मेरा कोई चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, कोई चैप्टर बहुत वीक हो गया। तो उस लास्ट मंथ में तो बहुत स्ट्रेस था कि हाँ भाई कैसे करें, क्या करें, बहुत कुछ रिवाइज करने वाला। तो मैं हर चीज़ के ऊपर से एक एक बार देखता गया। नीट हुआ, रिज़ल्ट फिर वही, सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इस साल रीज़न ये नहीं था कि मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, इस साल रीज़न ये था कि मैंने सही चीज़ नहीं पढ़ी। तो अब कमिंग टू द जर्नी ऑफ फाइनल नीट। तो जब लास्ट नीट था, सबसे पहले तो सबको मनाना घर पे बहुत मुश्किल कि भैया मुझे दोबारा नीट देना है। वो क्योंकि सबका जनरली यही था कि 2 बार दे दिया, अब नहीं हुआ तो अब क्या ही होगा। बट मुझे था कि नहीं, मुझे फिर से ड्रॉप करना है। तो सबको मना कर ऐसे धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। एंड इस साल मैंने NCERT पे ज़्यादा फोकस किया। मतलब मैंने NCERT भी पढ़ी, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी पढ़े, बट मेन फ़र्क मैं लाया अपने एटीट्यूड में। सबसे पहले मैंने अपने आप को ये चीज़ एक्सेप्ट करवाई कि हाँ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और ड्रॉप करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई बात नहीं, अगर मैं किसी का इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहा हूँ, वो घूमने जा रहे हैं या वो इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई को इन्जॉय कर सकता हूँ। पढ़ाई इन्जॉय कोई कैसे कर सकता है, ठीक है, मेरे को पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे, बट जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही है, तो क्यों ना उस चीज़ को इंटरेस्ट से करो। अब किसी भी चीज़ को बर्डन लेकर करोगे तो वो ढंग से होगी ही नहीं। कितना मर्जी पढ़ लो बर्डन लेकर, याद नहीं रहता। तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो होता है उसको पढ़ लिया करो पहले, कुछ भी पढ़ने से बेकार पहले। और कभी जब लगे कि हाँ नहीं पढ़ने का मन हो रहा तो थोड़ा ब्रेक भी दो, ब्रेक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करते 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 एटीट्यूड में चेंज लाकर मैंने पढ़ना शुरू किया सेकेंड ड्रॉप के लिए, और मेरे मार्क्स कोचिंग में अच्छे हो गए। फिर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो ऑनलाइन में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जब मई तक आते आते तो मेरे को फिर लग रहा था कि मेरा इस साल नहीं होगा, बट पेपर हुआ पोस्टपोन। पेपर पोस्टपोन हुआ तो मैंने अपने आप को फिर कंसिस्टेंट रखा। मतलब जब पेपर के बीच में 2 महीना गैप था, हाँ किसी किसी दिन मैंने कम पढ़ा, किसी किसी दिन ज़्यादा पढ़ा, बट मैं कंसिस्टेंट रहा कि मैं डेली पढ़ूंगा, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है। आपको अपने आप को ये चीज़ रियलाइज़ करवाना ज़रूरी है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। फिर जुलाई के बाद सितंबर हुआ, फिर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ हो जाती है कि यार इतना पोस्टपोन क्यों हो रहा है बार बार। फिर स्टार्ट हुआ फाइनल मंथ, जब क्लियर हो गया कि नीट अब सितंबर में ही है। तो लास्ट मंथ नीट का बहुत क्रूशियल होता है,
क्रूशल इन द सेंस इसलिए नहीं कि आप कोई नई चीज़ पढ़ते हो, कोई नई चीज़ सीखते हो, नहीं, पढ़ने का टाइम सब गया अब। पढ़ने के टाइम नहीं रहा आपके पास अब आप अपने आप को ओरिएंट करते हो, आप अपनी पुरानी चीज़ें रिवाइज करते हो जो आपने पढ़ी, जल्दी जल्दी से, क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं, ऊपर ऊपर से देख लिया, जो चीज़ आपको अपनी वीक लग रही है उस पर थोड़ा फोकस करके पढ़ लिया, बट कोई भी नई चीज़ अवॉइड करो। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ना है तो बात और है, लेकिन वरना कोई भी नई चीज़ अवॉइड करो। और स्ट्रेस, देखो लास्ट मंथ में स्ट्रेस होगा ही होगा। स्ट्रेस आपका फ्रेंड भी बन सकता है, आपका एनिमी भी बन सकता है। अगर आप स्ट्रेस से डील कर सकते हो तो वो आपका फ्रेंड है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस से डील करना नहीं जानते तो वो एनिमी बन जाता है। तो लास्ट मंथ में स्ट्रेस होगा, वो एक अनअवॉइडेबल चीज़ है, बट उसके साथ डील कैसे करना है और उसके बाद अपनी रिविजन कैसे कैरी करनी है, ये होता है एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी। तो आप अच्छे से करो पढ़ाई, स्ट्रेस होगा लेकिन उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग इस बात पे लगाओ कि पढ़ाई करनी है। और अगर आपका हार्डवर्क ऑनेस्ट रहा होगा तो आपका नहीं पक्का अच्छा होगा। जब मेरा भी पेपर पास आ गया तो मैं भी डेली बहुत रिवाइज करता था पुरानी चीज़ें, और जब पेपर हुआ, जिस दिन पेपर था उस दिन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब उससे पहले पूरा महीना मुझे स्ट्रेस था, बट जिस दिन स्पेसिफिकली पेपर था उस दिन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने पढ़ा है। और जब आप पढ़ते हो तो हर चीज़ आपके फेवर में होती है, उस दिन आपका मूड अच्छा होता है, आप सो लेते हो अच्छे से, और भी तरह तरह की चीज़ें। तो डोंट वरी कि पेपर अच्छा होगा या नहीं, वो सब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ ये बात कि आपने हार्डवर्क अच्छे से किया है या नहीं ये आपके हाथ में है। और ये सब अंदर से जानते होते हैं, बाहर हम जिस मर्जी को कुछ भी बोल लें, अंदर से हमें पता होता है कि हाँ हमने कितना पढ़ा है। So I started studying for NEET in 11th, and my classes were from 7 a.m. to 1 p.m. And then in the afternoon, I took my lunch and a short nap of about 1.5 hours, and then I started studying again in the evening. I approximately studied for 6 hours, and in between I also took a small break of half hour so that I can refresh my mind. क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं तो इतनी एफिशिएंसी नहीं रहती है. So you can take a walk outside or do something which you like, but ज़्यादा भी नहीं करना. We should not waste time. And then I slept usually around 11 and 11:30 because I have to wake up early in the morning. बीच में सबसे पहले मैं बायो करती थी, उसके बाद फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री. सो दिस वाज माय शेड्यूल. बट आप जो करते हो वो पहले करो जो आपको अच्छा लगता है, ताकि उसको आप अच्छी एफिशिएंसी से कर पाओगे. और आपको डीमोटिवेट नहीं होना कि अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं. अभी सितंबर में एग्ज़ाम आने वाले, और मेरा भी जब एग्ज़ाम था तो 1 महीने पहले टेस्ट के अंदर कम मार्क्स आते थे, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है. जो नीट एग्ज़ाम आया तो मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि आपको जो आपके क्वेश्चंस गलत हैं उसको फिर से देखो, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा सबसे. डीमोटिवेट नहीं, उससे हमारे और क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे और हम अच्छा नहीं कर पाएंगे. ठीक है, और हमें ट्राई करते रहना चाहिए. और जैसे कम मार्क्स आते हैं तो उससे डिप्रेस या डिमोटिवेट नहीं होना है. और अभी सितंबर में एग्ज़ाम आने वाला है, तो मेरा भी जब 1 महीने पहले था तो उन्होंने टेस्ट पेपर्स कर दी तो उसमें कम मार्क्स आते थे. सो कम मार्क्स आ जाते थे कई बार, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना. अभी अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हो जाते तो उससे ऐसे डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि आपको ये सोचना है कि अच्छी बात है कि नीट में क्वेश्चन आता तो आपका वो गलत नहीं होगा. आपको पता चल गया आपकी मिस्टेक के बारे में. और जो क्वेश्चन गलत हुआ बायो में, केमिस्ट्री में, तो उस टॉपिक को फिर से पढ़ो. पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो जो टॉपिक है उसी को फिर से पढ़ोगे तो वो अच्छा हो जाएगा. और वी शुड जस्ट कीप ट्राइंग. ऐसे नहीं सोचना है कि ये मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, तो उससे और क्वेश्चंस गलत होंगे, आप अच्छा नहीं कर पाओगे. और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमें टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस वैसे ही रिपीट हो जाते हैं या वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं. मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. पिछले साल के जो पेपर्स हैं 2020, 2019, उसको हम देख सकते हैं. प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स की बुक्स आती हैं, वो भी देख सकते हैं. और हमें पेपर के टाइम पैनिक नहीं होना है, काम रहना है. हम घर में अगर टेस्ट पेपर कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो उसमें तो हम काम होते हैं, क्योंकि हमारा घर का एनवायरनमेंट अच्छा होता है. पर जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमारा माइंड सेट अलग होता है, तो उसमें हमें पैनिक नहीं करना है. So talking about my journey, I am a 2-year dropper. I gave my first attempt back in 2018, and that time I didn't prepare for the examination. मैंने just देने के लिए दिया था and I got a score of 275. So जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया था, बिकॉज मेरे बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे थे, सो हैड टेकन एडमिशन इन DU एंड मैं साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर रहा था. आई वॉज परस्यूइंग BSc लाइफ साइंसेज ओवर देयर. सो इट वॉज इन DU दैट मेरा इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स द MBBS फील्ड, द मेडिकल फील्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. एंड बिकॉज एट दैट टाइम आई रियलाइज कि वट एक्चुअली आई वांट टू बिकम इन माई लाइफ. सो आई गेव अ पार्शियल ड्रॉप. मतलब मैंने
मतलब दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए, ऑल्दो मैंने बीच में ही DU छोड़ दिया था, बट काफ़ी टाइम उसमें चले गया। तो मैंने फिर कोचिंग भी ली थी। मैं मतलब कभी भी कोचिंग के हिसाब से मैं बाहर नहीं गया, मैं होम ट्यूशन ली थी एंड आई गॉट अ स्कोर ऑफ 535 एंड मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला था एट दैट स्कोर। मैंने सेकेंड ड्रॉप दिया एंड आई गॉट 662 इन VMMC। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि ऐसा क्या चेंजेस थे मेरे फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकेंड ड्रॉप में विच विल बी हेल्पफुल टू यू। मैं पहले ड्रॉप के कारण टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डरपोक था। इनफैक्ट मेरे पेपर्स भी रेगुलर नहीं देता था। बेसिकली मैं मार्क्स से काफ़ी डरता था। आई यूज्ड टू थिंक कि व्हाट आई एम स्कोरिंग इन द मॉक टेस्ट विल बी माई एक्चुअल एग्ज़ाम मार्क्स। मैं हमेशा यही सोचता था और यही मेरा माइंडसेट था। मैंने एक जो कावर्ड एक तरीके से अप्रोच अपनाया और मैंने टेस्ट देने कम कर दिए, इनफैक्ट बंद ही कर दिए थे एंड आई पेड द प्राइस एंड आई डिड मेक द मार्क। सेकेंड ड्रॉप के टाइम आई फेस माई फियर्स। आई विल से कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए थे एंड वाई एम हैविंग अ स्पेशल एम्फोसिस ऑन टेस्ट बिकॉज कि यार जब तुम टेस्ट देते हो ना यार कि तुम्हारा पूरा का पूरा एक सिलेबस रिवाइज होता है। आई मीन ऑफकोर्स तुम मतलब बुक पकड़ पलट के वो कर सकते हो, बट एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। इट्स द पेपर्स विच फिल यू विद कॉन्फिडेंस। अगर तुम वहाँ अच्छा करने लग जाते हो, ऑफकोर्स तुम स्टार्टिंग से नहीं करोगे, बट स्लोली यू विल गैदर द पेस एंड तुम्हारा एक स्टेगनेंट स्कोर आएगा, फिर यू विल इम्प्रूव ऑन दैट एंड ऐसे तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब तुम अगर पेपर नहीं दोगे जैसे कि मैंने किया था पहले ड्रॉप के टाइम, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता एंड मे बी समवन एल्स टेक्स दैट चांस। तुम्हारा ऐसे एडमिशन रह जाता है। सेकेंडली अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि द नीट इज़ जस्ट अ मंथ अवे फ्रॉम नाउ, तो आई विल जस्ट टेल यू ऑल टू अवॉइड पैनिक। यार ये टाइम पे जितना तुम पैनिक अपना कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस तुम्हारी इंक्रीज होगी। बेसिकली इफ़ एनी वन ऑफ यू डज मेडिटेशन या फिर तुम थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो टू काम योर सेल्फ अप, बिकॉज जितना अभी तुम अपने ऊपर काम करोगे, मेंटली जितना प्रिपेयर करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम पे वो हेल्प करेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द नीट 2021 एस्पायरेंट्स 22 एस्पायरेंट्स, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि तुम जितना हो सके अपने सब्जेक्ट्स को रिलेट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो मैं जैसे बायो की यूनिट 1 है उसको मैं दूसरी यूनिट्स के साथ रिलेट करता था। इससे मुझे याद करने में भी ईजी होता था। फिर मैं थोड़ा और लेवल अप किया, बायो और केमिस्ट्री को रिलेट करना शुरू करा, फिर ऐसे वाइस वर्सा केमिस्ट्री बायो को, एंड मैंने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को। जब तुम ऐसे करते हो ना तो तुम्हारी फिजिक्स, तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट्स है वो बर्डन नहीं, तुम्हें इंजॉयमेंट लगेगी। So today when I sit to talk about this, which means achieving my biggest dream, takes me back by 4 years when I was sitting in class 9th and reading my books, looking at my parents, they're working, being a part of their talks, just got me inculcated that I wanted to be a doctor one day. But then my father intervened and explained the jelly cases, intricacies and the kind of hard work it requires and whether I was ready to go ahead with the path, and I chose one, never to turn back again. So there was my school where I had spent 12 integral years of my life, and this school helped me in much more possible ways. And I just went on, being constantly pushed by my teachers, both at school and at coaching, to achieve feat after feat. It was all the hard work put in by me, my parents, my teachers, and my friends whom I would call up in the middle of the night whenever I was feeling low or was not able to solve any sort of question. And also my little brother who helped me with my OMR sheets and always lifted my mood whenever I was feeling low. So it was this constant effort and hard work throughout this period of 4 years, and more so in the last 2 years. That is during my class 11th and 12th. Sitting through the books again and again, making notes, going through endless exam series, MCQs, and then rectifying the mistakes. So to now, just to add on to the details of it, I always devoted the first 6 hours of the day to physics, next 3 to chemistry, and the next 3 to biology. As physics used to be the toughest in comparison to other subjects, it took the greatest time and the greatest efforts. And then came the big day, September 13.
It was all about keeping your nerves intact and not losing on the mental balance, whether you know the first 10 questions or not. My grandmother's blessings were always there, but I think that the special prayers were added. The 3-year ordeal came to an end, and I was satisfied but little scared also. I did well, but it's all in comparison to others that my result will come, my rank will be decided, and I would be allotted the college. Then it was announced that I secured a wonderful position. My parents in tears, they didn't know how to react. And now here I am in front of you as a first year MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital. I prepared for NEET for 1 year from Kota. It was a long and tiring year due to lockdown, so I can understand how you all going through this time. So let's start with my stories. I passed 12 2 years ago and went Kota for preparation. And I was just an average student. कोई बहुत बड़ा पढ़ने में वो नहीं था. Just like you all, average student था. It was all hard work and everything that I was able to score 685 out of 720 with All India rank for Not 6. So what was my strategies during the last month? First of all, keep yourself motivated. आपने पूरे साल में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है, बस अब आपको रिवीजन करना है, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो. बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आपके परफॉर्मेंस पे बहुत ही असर पड़ेगा इससे. अब आपको क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है. आपके पास जितने भी डेज रिमेनिंग है उनका टाइम टेबल बनाओ. ऐसा नहीं करना है कि डेली आपको टाइम टेबल चेंज करना है, नहीं. आप एक टाइम टेबल बनाओ और डे वाइज आप बनाओ कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं पर डे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए. एंड आप सोने से पहले उनको मैच करो कि क्या आपका जो आपने सोचा था कि आप वो कंप्लीट कर पाए आपके टास्क या नहीं. एंड डेली के डेली आप खुद को असेस करो. तो आप अपने चैप्टर्स डिवाइड कर लो, जैसे रिवीजन करना है. आप खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, किसी और की फॉलो मत करो. सबके पोटेंशियल्स अलग होते हैं. आप फालतू में डिप्रेस्ड होंगे किसी और के शेड्यूल को देख करके, ऐसा नहीं होना है. कंपटीशन नहीं करना है किसी से. हेल्दी कंपटीशन अलग चीज़ है, बट आपको अभी किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से पढ़ाई के बारे में कंपैरिजन नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है. आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, एक शेड्यूल बनाना है. स्टिक टू दैट शेड्यूल योर रिवीजन प्लान्स. अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करते हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की. बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट. ये जितनी बार भी बोलूँ कम है. आपके पास 2 एनसीईआरटी की बुक्स हैं 11th एंड 12th की. आप सारे चैप्टर्स डिवाइड कर लो, आपको कैसे कब रिवीजन करना है. एनसीईआरटी का नोट्स तो आप नहीं बना सकते, मुश्किल है, बट मैं ये कहूँगा कि आप लाइन बाय लाइन जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ सकें, या अगर आपने पढ़ी हो और आपने पॉइंट्स को हाईलाइट किया हो तो आप उस पॉइंट को जितनी बार देखेंगे. बिकॉज अभी हम रिसेंट पेपर का पैटर्न देखें तो उसमें यही हो रहा है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहे हैं नीट में. सो आपको बस रिवीजन करना है एनसीईआरटी की चीज़ों को. अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार जो मैंने कल पढ़ा था वो आई कैन नॉट रिटेन द थिंग्स, मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता. जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे. क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, बट आपको फोकस रखना है. एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अभी आप पढ़िए, रिवीजन करिए. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी मैक्सिमम है आपको अच्छे नंबर्स दिलाने के लिए. आप पहले अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप वो बाद में पढ़ सकते हैं, बट अभी टाइम कम है. सो एनसीईआरटी से आप जितना हो सके उन चीज़ों को रिवीजन करना है. ऑर्गेनिक में कुछ लास्ट के चैप्टर्स जैसे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, काफ़ी स्टूडेंट इसको मिस कर देते हैं चैप्टर्स, बट मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इनको कभी मत मिस करिए. गिव देम अ रिवीजन एंड कीप होल्ड ऑन देम. ये आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और रैंक भी बूस्ट करने में आपको हेल्प करेंगे. टॉकिंग अबाउट फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, सो मैंने क्या किया था, मैंने एक फार्मूला नोटबुक बना ली थी एग्ज़ाम के 1.5 मंथ्स एगो. सारे एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें. जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उनको एक नोटबुक में नोट कर लो और आप डेली उनका रिवीजन कर सकते हैं. इससे क्या होगा, पहली चीज़ तो ये कि नीट में अभी रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन उठा के पूछे जा रहे हैं. सो आपको क्या करना है, फार्मूला की लिस्ट बनाए. एटलीस्ट आपको फार्मूलाज तो याद रहेंगे. अगर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही आते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा पेपर होगा फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में. फिजिक्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स की प्रॉब्लम होती है. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ईजी आएगा, आप अच्छे से कर ले जाओगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. फार्मूलाज पे होल्ड रखो, सब कुछ फार्मूलाज आपको अभी जो चैप्टर फिजिक्स में, तो कुछ चैप्टर्स आपको हार्ड लगते होंगे, जैसे मेरा ग्रेविटेशन था, रोटेशनल थोड़ा सा मेरा वीक था. मैंने क्या किया था, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज नोट करके रखे थे और मैंने उनको काफ़ी रिवाइज किया था, जिससे वो याद हो गए थे. तो आप ऐसा करो, एटलीस्ट फार्मूलाज को आप
लर्न कर लो। अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं हो रहा है तो अभी मत करो, आप अपने वीकर एरियाज़ को अभी काफ़ी फाइन करने की कोशिश मत करो। आपके जो वीक सेक्शंस हैं उनको अभी छोड़ दो, जो आपको इंपॉर्टेंट है और जो आपका काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है उनको बार बार रिवाइज करो, उन टॉपिक्स को शार्प करो। बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा टाइम दो, एनसीईआरटी खास करके पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ डालो, जितनी बार कोशिश कर सको आप एनसीईआरटी पढ़ डालो। बस फिजिक्स के लिए फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉन्डर, चैप्टर की समरी, सॉल्व एग्जाम्पल एक बार जरूर एग्जाम से पहले देख के जाएं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है इस समय, आप बहुत ज़्यादा इधर उधर के बुक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हटना नहीं है। एनसीईआरटी बायो के लिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए सफिशिएंट है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करो। सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में उनको आप करने का ट्राई करो। आप अगर किसी कोचिंग या कहीं से जुड़े हुए हैं तो आप उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ट्राई करो और प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। बस इतना ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टेट ऑफ माइंड। आप खुद को काफ़ी मोटिवेटेड रखो। मेक टाइम फॉर योर फैमिलीज। ऐसा नहीं है आप दिन भर रूम में बैठ के बस पढ़ाई किए जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। फैमिली के साथ बैठो, बातें करो, फ्रेंड्स से कॉल पे बात करो, डिस्कस करो चीज़ें। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो फ्रेंड्स से पूछो। अगर आपने कुछ नया पढ़ा है, कुछ एनसीईआरटी में कुछ आपको अच्छी पॉइंट्स मिली हैं जो लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए, तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। ऐसा आपको वो पॉइंट काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। और आप अपने फ्रेंड के साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन रख सकते हैं प्रिपरेशन को लेकर के, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेट योर सेल्फ, मोटिवेट योर फ्रेंड्स, and in turn you get motivated yourself. Guys, I belong to a very small town in Haryana, so my biggest challenge was to get a good coaching or at least schooling. So I remember in my 10th class I gave NTHE, which is a scholarship test of Akash Institute, and I secured all India rank of 750 in that test. This rank not only increased my motivation but also gave me opportunity to study in that institute, as it was a financial help and the scholarship I got because of this rank was around 89% at that time. So after my 10th boards I went to Delhi in a hostel, and here comes another challenge, living in a hostel. I was going to live without my parents for the first time in a hostel, but वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. So I started my NEET preparation with full motivation and support from my parents, and to be honest, I got really demotivated in the beginning because शुरू में होता है ना कि पेरेंट्स के बिना मन नहीं लगता, नया नया एनवायरनमेंट होता है. बट गाइज, अगर वो टाइम सही से मन लगा लिया, सही से पढ़ लिया, तो आगे की लाइफ ठीक हो जाएगी, आगे की प्रेपरेशन ठीक हो जाएगी, आगे की जर्नी ठीक हो जाएगी. ठीक है, तो सो आई रियली गॉट डिमोटिवेटेड इन द बिगिनिंग, and in the first test I saw many people, students scoring more than me and getting a better rank. So this was also a disappointment for me. But guys, I was regular and consistent in my studies, so slowly I improved my rank as well as marks, and I mainly focused on the NCERT and not that Pardeep, Dinesh and other books, because one book is enough, but you have to revise it again and again. So I kept it revising again and again. And another difficulty was कि हॉस्टल में दोस्तों के साथ पढ़ाई, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, ये उतना ही होता है जैसा जितना कि अपनी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जनरली, दैट इज़ इन स्मॉल अमाउंट. So I joined a library near my hostel for this, and at last after all this preparation and hard work I got a very good government college seat, that is VMMC. सो मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट हुई 11th में, दैन 12th, फिर आपका फर्स्ट ईयर ड्रॉप एंड सेकेंड ईयर ड्रॉप. मेरा थर्ड अटेम्प्ट था ये 2020 में, जब नीट क्लियर हुआ. बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, बहुत सारी, मतलब फर्स्ट ईयर ड्रॉप में तो बहुत करी थी, लोग सीखते हैं, बट हाँ करी तो करी. सेकेंड ईयर में वो सारी मिस्टेक्स करेक्ट करने की पूरी कोशिश करी. लाइक जो भी था सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं, जो प्रिपरेशन में जहाँ लैग आ रहा था, जैसे क्वांटिटी और क्वालिटी में इफेक्ट पड़ रहा था, वो इम्प्रूव किया. लाइक स्लॉट्स का टाइम इंटरवल बढ़ाया. स्टडी में लाइक कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ा. NCERT जो इम्पोर्टेंट था सिर्फ NCERT ही उठाया, वहीं से पढ़ा सिर्फ मैंने.
स्टार्टिंग में करते थे कि सब कुछ करना, नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी आता है वही करना होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स करे, पेपर्स अटेम्प्ट करे बहुत सारे, वहाँ से पता लगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कम था, कौन सा कॉन्सेप्ट आता है या कौन सा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है, उसको उसी दिन दोबारा पूरा रिवाइज करा। एंड रॉन्ग क्वेश्चंस और गैस वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा टेंशन देते थे कि वो फिर से ना हो। लाइक मेरे टीचर कहते थे, केमिस्ट्री टीचर, कि हर पेपर में मिस्टेक्स करो, इट्स ओके, पर हर पेपर में इट्स लाइक कि न्यू मिस्टेक्स करो, रेपिटेटिव मिस्टेक्स नहीं रह जाती, फिर आपने उस पर वर्क नहीं किया। तो हाँ, हर पेपर में न्यू मिस्टेक करो ताकि नीट तक जाते जाते तक वो मिस्टेक बचे ही ना। अभी भी काफ़ी टाइम है। बेसिकली मेरा 30 डेज़ का ये था कि मैंने पेपर प्रीवियस ईयर हर ईयर का अटेम्प्ट करा हर डे, उसी दिन रॉन्ग क्वेश्चन सॉर्ट आउट करे, गेस वाले क्वेश्चन सॉर्ट आउट करे, एंड उसी दिन रिवाइज़ किया, एंड उसी दिन उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया मेरा, जो मैंने स्टार्टिंग में कम था, मतलब नहीं करा था ऑलमोस्ट शायद, बट हाँ इस ईयर इस प्रिपरेटरी ईयर में किया मैंने ये वाला कि पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट किए, तो वो करा। एंड सिर्फ एनसीईआरटी पे कंप्लीट फोकस था, सिर्फ थ्योरी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा। कोई परफेक्ट नहीं होता है। लाइक जैसे हम सोचते हैं कि जिन्होंने निकाला वो परफेक्ट थे या उन्हें सब आता था, नहीं, सबके अपनी वीकनेसेस थी। फिज़िक्स सब ऑलमोस्ट सबकी होती है, सिर्फ आपकी ही नहीं है। मतलब आपको लग रहा होगा कि आपकी फ़िज़िक्स वीक है, टॉपर्स ने कैसा कर दिया, हमारी वीक थी। हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिज़िक्स प्रैक्टिस से ही आता है। कॉन्सेप्ट तुम सिर्फ पढ़ सकते हो, याद होगा, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक कॉन्सेप्ट गेन नहीं होगा। सेम गोज़ फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक भी तुम्हें रिवाइज़ करते करते आएगी। इनऑर्गेनिक का कह सकता है कि लास्ट में करो ताकि वो ज़्यादा याद रहे, या फिर मतलब ऐसे वाले वे में। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक भी डेली प्रैक्टिस से ही करो, रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स आने चाहिए बनाने। बायो का तो यही है, एनसीईआरटी पढ़ो, लाइक मार्क कर लो जो इम्पोर्टेंट है या जो गलत होते हैं या जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो लास्ट में रिवीजन में हेल्प करेगा। बुक्स में ही नोट्स कंप्लीट करो, एक्स्ट्रा कॉपीज़ वगैरह मत बनाओ। सो जाते जाते लाइक 30 डेज़ का मेरे हिसाब से मेन, अभी जैसे आपका बाकी है तो मेन यही है कि एनसीईआरटी और पेपर सॉल्व करो जितना मैक्सिमम हो सकता है। Now, revision strategies, it depends. So, just 1 month is left. Okay, so you guys have basically prepared for at least 2 years, or in most cases, it's more than 2 years. And so, just don't put a lot of pressure on this 1 month. It is important, it is very important, but it's just don't put too much, don't think too much of it. And now, for different subjects, now, this 1 month you have to plan it. Like for biology, for subjects that you have to learn more, like biology, inorganic chemistry, just study these subjects a little more in this 1 month. And first of all, I mean, if you want to just have a good revision strategy for all the subjects, start with, I'd say, physics and chemistry, and start with the topics that involve more concepts. Now, by concepts, something it's tough to define concepts, but basically it is how you approach a question. Like you have physical chemistry, you have numerical in physics, you read it and how you approach it. And how to strengthen those concepts is to, you could make a formula notebook. However, that is also a concept, basically a formula, but you need to learn how to derive those formulas. So just derive all the formulas that you know, and you could like make a formula notebook of those formulas along with the definitions. So okay, so a very important part of concept is definition. Okay, काफी बार you can solve a question on the basis of a definition also, and काफी बार the person who's setting the question will actually confuse you through that definition only. Okay, and other than that, your NCERTs are of paramount importance in this time. So physics and chemistry, even though you're trying to strengthen your concepts, you would try to go to other books, but I'd say just prefer your NCERTs, because trust me, in NCERT के अंदर the last pages that points to ponder वाला topic, that has a lot of stuff in it, and which even most of the coaching वाली books they don't cover. Okay, and so just for physics and chemistry, do that. Make a formula notebook, write all the definitions, and write all the ways. Like there are certain questions, like physics, you have a question that you have a ball and you hit it at different levels with a cue. I don't know if those questions are, I don't think these are very important right now because it's just neat. But questions like those which you find tough, just have a sort of a modus operandi, a method to solve that, and just write that in your formula notebook. But just don't waste any time. If you don't want to make a formula notebook, this is fine, but just revise all the formulae at least once or twice.
and do that. That is what I did. I'm just saying you can make your own revision strategy, but what I did is basically this. So for 10 days or 12, 13 days I just made that formula notebooks, and then I revised that on 2 or 3 days before the exam. After that, the main focus is inorganic chemistry, biology, and a little bit of here and there, a couple of things in physical chemistry and stuff like that, which you have to remember. Now trust me, inorganic chemistry, jitni baar bhi padhoge, you would not remember everything. The more you read it, the more repetitions. Okay, not just ki 1 ghante ke andar you just get 2 or 3 hours you just spend on a chapter. Do it multiple times. Like do it once, do something else, and then the next day or a couple of days again do it again. Just do this with inorganic chemistry, with biology, and biology too. Every chapter, don't leave a chapter ever in any of these. Like koi bhi topic, even if you're weak in na, just try to read us topic ki NCERT in this time that you have left. Just go through everything. And for biology and inorganic chemistry, spend a little more time. Read everything, read it line by line, underline it, and notes के लिए अब obviously time नहीं है. Formula notebook, like I said, अगर time मिल रहा है so just make it. It'll help you to revise the formula a couple of days before exams. And other than that, just chill. And okay, you won't be able to chill, so just don't get too tensed. It'll all be fine. You guys have studied a lot, and I guess that's it. That is what I basically did. I didn't chill too much. Okay, well, चलता. And of course, जिनका पेपर अभी 1 month बाद है, तो I wish all of you. So best of luck. तो बस लास्ट मंथ है, अपने आप को ओरिएंट करो, अच्छे से समझो कि हाँ एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पेपर देने वाले हो. कंपटीशन बहुत टफ है, बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं. जब पढ़ा है तो रिजल्ट भी आएगा. So yeah, that's all. So all the best. ठीक है. तो बस यही है, स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है. आई विश यू ऑल द गुड लक एंड थैंक यू गाइस.